एलिस के जो मैक एड्रेस है उसको यूज़ करेंगे अपने मैक एड्रेस की जगह। तो अगर आप किसी ऐसे आईपी एड्रेस के ऊपर पिंग रिक्वेस्ट भेजते हो जो कि एग्ज़िस्ट करता है, तभी आपको ये रिस्पॉन्स जो है वापस मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 4 ही पैकेट्स जो है वो सेंड करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम टू योर ऑडियो बुक। एंड आज हम करने वाले हैं नेटवर्क फंडामेंटल्स, जो कि है मॉड्यूल 2। पिछले 3 एपिसोड में आपने देखा कि हमने अपनी फर्स्ट मॉड्यूल को कंप्लीट किया था, जो कि था इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम इसका फर्स्ट रूम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज़ नेटवर्किंग। आप इस मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर को यूट्यूब पर भी देख सकते हो, जैसे कि ट्राई हैकमी के अंदर उन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो का एक लिंक प्रोवाइड किया है। तो इसके अंदर हमारे पास 5 टास्क्स हैं एंड एक नहीं, 2 बहुत अच्छे प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। सो टास्क 1, व्हाट इज नेटवर्किंग? Networks are simply things connected. For example, your friendship circle. You are all connected because of similar interests, hobbies, skills, and sorts. Networks can be found in all walks of life. A city's public transportation system, infrastructure such as the national power grid for electricity, meeting and greeting your neighbors, postal systems for sending letters and parcels. But more specifically, in computing, networking is the same idea, just dispersed to technological devices. Take your phone as an example. The reason that you have it is to access things. We will cover how these devices communicate with each other and the rules that follow. In computing, a network can be formed by anywhere from two devices to billions. These devices include everything from your laptop and phone to security cameras, traffic lights, and even farming. Networks are integrated into our everyday life, be it gathering data for the weather, delivering electricity to homes, or even determining who has the right way of at a road. Because networks are so embedded in the modern day, networking is an essential concept to grasp in cybersecurity. Take the diagram below as an example. Alice, Bob, and Jim have formed their network. We will come onto this a bit later on. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना एक छोटा सा नेटवर्क बना रखा है, जिसके बीच में ये मैसेजिंग और मैसेजेस एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। Networks come in all shapes and sizes, which is something that we will also come on to discuss throughout this module. What is the key term for devices that are connected together? That is network. The task 2. What is internet? Now that we have learned what a network is and how one is defined in computing, just device connected, let's explore the internet. The internet is one giant network that consists of many small networks within itself. Using our example for the previous task, let's now imagine that Alice made some new friends named Zane and Toby that she wants to introduce to Jim and Bob. The problem is that Alice is the only person who speaks the same language as Zane and Toby. So Alice will have to be the messenger. तो जैसे कि आपने पिछले डायग्राम में देखा, पहले एलिस, बॉब एंड जिम तीनों एक नेटवर्क बना रहे थे। लेकिन उसके बाद एलिस ने अपने 2 फ्रेंड्स को और ऐड किया। अब द प्रॉब्लम ये है कि एलिस, ज़ेन और टॉबी जो कि उसके न्यू फ्रेंड्स हैं, उनको मिलाना चाहती है अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, जो कि हैं बॉब एंड जिम। बट द हर्डल इज़
the language that Zane and Toby used to talk, only known to Alice, not to Bob and Jim. So, what is the solution? Let's go further. Because Alice can speak both languages, they can communicate to one another through Alice, forming a new network. क्योंकि एलिस को बॉब एंड जिम एंड टॉबी एंड जेन दोनों की लैंग्वेज आती है, तो अब वो एक ब्रिज का काम करेगी जो कि मदद करेगा बॉब एंड जिम को जेन एंड टॉबी के साथ कम्युनिकेशन करवाने में. The first iteration of the internet was within the ARPANET project in the late 1960s. This project was funded by the United States Defense Department and was the first documented network in action. However, it wasn't until 1989 when the internet as we know it was invented by Tim Berners-Lee by the creation of the World Wide Web. So, जो कि टिम बर्नर्स ली थे, उन्होंने जो है इंटरनेट को इन्वेंट किया था. It wasn't until this point that the internet started to be used as a repository for storing and sharing information, just like it is today. Let's relate Alice's network of friends to communicating devices. The internet looks like as much larger version of this sort of diagram. तो अगर हम एलिस की जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पर चल रही थी, उसको अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क की तरह हम देखें, तो ये मान लो एक बीच में इंटरनेट है जिसके साथ बहुत सारे नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं. अब फॉर एग्जांपल द इंटरनेट जो कि है एलिस, अगर हम एज्यूम करें तो ये उसके एक आप कह सकते हो कि पार्ट, उसके फ्रेंड्स का एक सर्कल है छोटा, नेटवर्क वन, नेटवर्क टू, नेटवर्क थ्री, जो कि बीच में एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है. As previously stated, the internet is made up of many small networks all joined together. These small networks are called private networks, where networks connecting these small networks and called public network or the internet. So, to recap, a network can be one of two types: a public network and a private network. Devices will also a set of levels to identify themselves on a network, which we will come into the task below. So, जैसे कि आपने देखा, एक ये जो पूरा का पूरा अगर आप जो वाइट वाला पोर्शन है, उसको अगर आप माने तो ये एक पब्लिक नेटवर्क की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर छोटे-छोटे प्राइवेट नेटवर्क्स जो कि नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 एंड नेटवर्क 3 कनेक्टेड हैं. तो यहाँ से आपको एक अच्छा डिफरेंस मिल जाता है कि प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है एंड पब्लिक नेटवर्क क्या होता है. हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? दैट इज टिम बर्नर्स ली. बट उनके स्पेलिंग मुझे कॉपी करने पड़ेंगे. So this, let's put it here. Check. Now the task 3 is identifying devices on a network. To communicate and maintain order, devices must be both identifying and identifiable on a network. What use is it if you don't know whom you are talking to at the end of the day? Devices on a network are very similar to humans in the fact that we have two ways to being identified. तो वो क्या वेज हैं? जैसे कि आपका नेम और आपका फिंगरप्रिंट, यही दो चीज़ें हैं जिससे एक ह्यूमन को हम आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ वी कैन चेंज आवर नेम थ्रू Deadpool, but we can't, however, change our fingerprints. Every human has an individual set of fingerprints, which means that even if they change their name, there is still an identity behind it. Devices have the same thing. Two means of identification, with one being permeable. These are an IP address, a media access control. Think of it as being similar to a serial number. तो जैसा कि हम ह्यूमंस हैं,
हमें आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमारे पास 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हमारे फिंगरप्रिंट्स या हमारे नेम। लेकिन जो नेम है, वो कोई भी कभी भी चेंज कर सकता है, बट हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा ही सेम हमारे कंप्यूटर डिवाइसेज़ के अंदर होता है, जैसे कि एक आईपी एड्रेस। जैसे ही आपके किसी भी अ, आप स्मार्टफ़ोन कह लो या लैपटॉप कह लो या पीसी, जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो उसे एक न्यू आईपी एड्रेस असाइन होता है। बट आप उस आईपी एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आईपी एड्रेस स्पूफर्स होते हैं और वीपीएन्स होते हैं जिनके थ्रू आप आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो। बट जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, जो मैक एड्रेस होता है, उसको आप चेंज नहीं करते, क्योंकि वो आपकी एनआईसी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसके अंदर वो बर्न्ट होता है। लेकिन आप सिर्फ उसको स्पूफ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि आप अपने लैपटॉप या पीसी का मैक एड्रेस कैसे स्पूफ कर सकते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा। सो अब हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जो कि है आईपी एड्रेस। मैं चाहूँगा कि आप इस चैप्टर के नोट्स भी साथ साथ बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So, briefly, an IP address or Internet Protocol address can be used as a way of identifying a host on a network for a period of time, where the IP address can then be associated with another device without the IP address changing. First, let's split up precisely what an IP address is in the diagram below. सो हमारा जो एक आईपी एड्रेस होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, जो कि ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3 एंड ऑक्टेट 4। जैसे कि आप देख रहे हो आईपी एड्रेस, जैसे कि फर्स्ट ऑक्टेट में हमारे पास अभी 192 है, सेकंड में 168 है, एंड थर्ड में 1 है, एंड फोर्थ में 1 है। ये वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है 0 टू 225 के बीच में। एन आईपी एड्रेस इज a set of numbers that are divided into 4 octets. The value of each octet will summarize to the IP address of the device on the network. The number is calculated through a technique known as IP addressing and subnetting, but that is for another day. What's important to understand here is that IP addresses can change from device to device but cannot be active simultaneously more than once within the same network. तो सेम नेटवर्क के अंदर आपका जो आईपी एड्रेस है, वो किन्हीं भी 2 डिवाइसेस का कभी भी सेम नहीं होगा। आईपी एड्रेसेस फॉलो a set of standards known as protocols. These protocols are the backbone of networking and force many devices to communicate in the same language, which is something that we will come on to another time. However, we should recall that devices can be on both a private or public network. Depending on where they are will determine what type of IP address they have, a public IP or a private IP. A public address is used to identify the device on the network, whereas the private network is used to identify a device amongst other devices. Take the table and screenshot below as an example. Here we have two devices on private network. तो आप देख सकते हो हमारे पास एक चार्ट है जिसके अंदर कुछ हमारे पास डिवाइसेस हैं, उनके आईपी एड्रेस हैं, और वो प्राइवेट है या पब्लिक है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी नो दैट जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं उसके थ्रू हम किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेयर एज एक जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है उसके थ्रू हम किसी भी डिवाइस को एक छोटे ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के बीच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि ये चार्ट आप देख पा रहे हो, ये एक डेस्कटॉप है। उसी सेम डेस्कटॉप के 2 आईपी एड्रेस हैं, जैसे कि एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। सो दिस इज़ द प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड दिस इज़ पब्लिक आईपी एड्रेस। वैसे ही एक पीसी है जिसको हम 2 तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एक है उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड एक पब्लिक आईपी एड्रेस।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों जो डिवाइसेस हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के चैनल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं और उनका जो मैक एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो मैंने आपको बताया था कि ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि एनआईसी होता है, जो मैन्युफैक्चरर के थ्रू बर्न्ड होता है आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप की मदरबोर्ड के ऊपर। These two devices will able to use their private IP addresses to communicate with each other. However, any data sent to the internet from either of these devices will be identified by the same public IP address. Public IP address are given by your internet service provider at a monthly fees. सो जैसे कि आपने इस डिस्क्रिप्शन में देखा कि जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो हमें हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे कि मैं अभी एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ माय आईपी, तो ये मुझे मेरा आईपी एड्रेस बताएगा। ये देखिए, मैं एयरटेल का जो है आईएसपी, जो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो एयरटेल है, and this is my IPv6 and this is my IPv4 IP addresses। आप भी चेक कर सकते हैं what is my IP address वेबसाइट पे जाकर। As more and more devices become connected, it is becoming increasingly hard to get a public address that is not already in use. For example, Cisco, an industry giant in the world of networking, estimated that there would be approximately 50 billion devices connected to the internet by the end of 2021. So far, we have only discussed one version of the Internet Protocol addressing scheme known as IPv4, which uses a numbering system of 2 raised to power 32 IP addresses, that is 4.29 billion. So as you can see why there is such a shortage। जो IPv4 IP एड्रेसेस हैं जो कि वर्जन 4 हैं, उनकी जो मैक्स पॉसिबिलिटी है वो है 2 रेज़ टू पावर 32, दैट इज़ 4.29 बिलियन। बट अब यहाँ का जो 2021 का जो इनका डेटा है वो बता रहा है कि 50 बिलियन डिवाइसेस जो कनेक्टेड है। तो देयर इज़ अ हाई शॉर्टेज ऑफ द आईपी एड्रेसेस। So here comes IPv6 is a new iteration of the IPv4, that is Internet Protocol Addressing Scheme, to help tackle this issue. Although it is seemingly more daunting, it boasts a few benefits. First, support up to 2 raised to power 128 of IP addresses, that is 340 trillion plus, resolving the issues faced with IPv4. Most efficient due to new methodologies। अभी आपने यहाँ पर देखा हमारे पास जो IPv4 था वो 2 रेज़ टू पावर 32 आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता था, लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ रही थी। तो जो IPv6 जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो 2 रेज़ टू पावर 128 आईपी एड्रेसेस जो कि हैं 340 ट्रिलियन प्लस आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। तो हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस devices on a network will all have a physical network interface, जो कि मैंने आपको बताया था NIC, which is a microchip board found on the device's motherboard. This network interface is assigned a unique address at the factory it was built at, called a MAC, Media Access Control address. The MAC address is a 12-character hexadecimal number split into two twos and separated by a colon. These colons are considered separators. For example, A4C3F085AC2D. The first six character represents the company that made the network interface, and the last six is a unique number. So आपके जो डिवाइस है, जो भी आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, उसके अंदर जो मैक एड्रेस होता है वो कंपनी के थ्रू बर्न्ड होता है। ये दो पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि आप रेड में देख पा रहे हो, वो वेंडर को बताता है कि ये किस कंपनी ने
बनाया है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है इंटेल। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो बताता है कि ये यूनिक एड्रेस ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस, तो उसका यूनिक एड्रेस, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मिल के एक मैक एड्रेस बनाती है, जो कि बहुत यूनिक होता है, जिसको आप नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ स्पूफ कर सकते हो। However, an interesting thing with MAC addresses is that they can be fake or spoofed। देखा, मैंने आपको बताया था ये कैसे स्पूफ होते हैं, मतलब बताया नहीं, मैं आपको बताऊंगा। वो हम इसकी जो काली लिनक्स है, जो कि एक हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर हम इसका जो मैक एड्रेस है उसको स्पूफ कर सकते हैं इन ए प्रोसेस नोन एज स्पूफिंग। This spoofing occurs when a networked device pretends to identify as other using the MAC address. When it occurs, it can often break poorly implemented security designs that assume that devices talking on a network are trustworthy. Take the following scenario: a firewall is configured to allow any communication going to and from the MAC address of the administrator. If a device were to pretend or spoof this MAC address, the firewall would now think that it is receiving communication from the administrator when it is not। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो कि इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता लगा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्पूफ कर सकते हैं। मतलब हम उसको कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका पीसी रिस्टार्ट नहीं होता, तब तक हम मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं किसी और मैक एड्रेस से। अगर एक फायरवॉल है जिसके अंदर कुछ ही मैक एड्रेसेस हैं जिसको वो अलाउ कर रहा है, तो अगर आप उस मैक एड्रेस की लिस्ट में से एक मैक एड्रेस उठाकर अपने मैक एड्रेस को उस अलाउड लिस्ट के मैक एड्रेस से अगर आप चेंज कर देते हो, तो जो फायरवॉल है वो आपको एक्सेस देता है उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। एक तरह से आप फायरवॉल बायपास कर रहे हो थ्रू दिस स्पूफिंग ऑफ मैक एड्रेस। Places such as cafes, coffee shops, and hotels alike often use MAC address control when using their guest or public Wi Fi. This configuration could offer better services, that is, a faster connection for a price if you are willing to pay the fee per device. The interactive lab attached to this task has been made to replicate this scenario. Practical. The interactive labs simulates a hotel Wi-Fi network where you have to pay for the service. You will note that the router is not allowing Bob's packet to TryHackMe website and is placing them in the bin. But Alice's packet, that is green, are going through fine because she has paid for Wi-Fi. Try changing Bob's MAC address to the same as Alice's to see what happens. Deploy the interactive lab and proceed to answer the following questions। तो जैसे कि इस प्रैक्टिकल में हमें जो टास्क मिला है वो है कि बॉब जो है उसने पे नहीं किया है वाईफाई का, तो उसे लेकिन जो वाईफाई है वो यूज़ करना है, बट वो है पेड सर्विसेज। बट जैसे कि आपने यहाँ देखा कि कुछ होटल्स, कैफ़ेज़ एंड कॉफ़ी शॉप्स जो होती हैं वो मैक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफ़ाई करती है किस गेस्ट ने पे किया है, किस गेस्ट ने नहीं किया है। मतलब जो भी मैक एड्रेसेस होंगे, जिन्होंने पे किया होगा, उनकी लिस्ट वहाँ पर स्टोर होगी, तो वही लोग उनके नेटवर्क को एक्सेस कर पाएँगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो एक एलिस है, उसका जो मैक एड्रेस है, वो अलाउ लिस्ट में है और उसने पे कर रखा है वाईफ़ाई के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो एलिस का मैक एड्रेस है, उस मैक एड्रेस से अपने मैक एड्रेस को स्पूफ करेंगे, जिससे कि फायरवॉल कंफ्यूज हो जाएगी और हमें एक्सेस मिल जाएगा नेटवर्क को एक्सेस करने का। सो ओपन कर लेते हैं इसकी साइट, व्यू साइट बटन पर क्लिक करके, एंड लेट्स आंसर द क्वेश्चंस।
तो जैसा कि आप इस प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, लेट मी ज़ूम आउट द स्क्रीन लिटिल बिट। ये देखिए यहाँ पे जो बॉब है, इसके थ्रू कोई भी नेटवर्क नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि यहाँ पर इसके पैकेट जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। जो ये राउटर है इसके अंदर जो फायरवॉल है उसके अंदर ये मैक एड्रेस नहीं है, क्योंकि इस बॉब ने वाईफ़ाई की सर्विस के लिए पे नहीं किया है। लेकिन हम जो है एलिस के जो मैक एड्रेस है उसको यूज़ करेंगे अपने मैक एड्रेस की जगह। अगर हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हो हमने सक्सेसफुली उस फायरवॉल को बाईपास कर दिया एंड वी गॉट आवर फ्लैग। कॉपी द फ्लैग एंड दिस इज द फ्लैग पार्ट। लेट्स पुट इट हियर। तो ये टास्क हमने कंप्लीट कर दिया। अभी ये बहुत ही ज़्यादा हाई आप कह सकते हो हाई लेवल एग्जांपल है। मैं इसे आपको टर्मिनल पे भी करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। व्हाट डज द टर्म आईपी स्टैंड फॉर? दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज ईच सेक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस कॉल्ड? सो जो हर एक सेक्शन होता है आईपी एड्रेस का उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट। हाउ मेनी सेक्शंस इन डिजिट्स डज एन IPv4 एड्रेस हैव? तो हमारे जैसे कि पढ़ा था इसके बारे में, इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि 4 ऑक्टेट होते हैं। व्हाट डज द टर्म मैक्स स्टैंड्स फॉर? दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑसम। सो आपने सारे जो क्वेश्चंस थे उनके बहुत ही सही आंसर कैस किए हैं। तो लेट्स pivot to our next task, that is 4, ping ICMP. Ping is one of the most fundamental network tool available to us. Ping uses ICMP, that is Internet Control Message Protocol, packet to determine the performance of a connection between devices. For example, if the connection exists or is reliable. The time taken for ICMP packet traveling between devices is measured by ping, such as in the screenshot below. This measuring is done using ICMP's echo packet and then ICMP's echo reply from the target device. So, अगर आपको देखना है कि कोई जो आपका होस्ट है वो अप है या डाउन है, उस होस्ट के आईपी एड्रेस के ऊपर आप एक पिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हो। Ping is one of the most fundamental network tools available to us. Ping uses ICMP, that is Internet Control Message Protocol packets to determine that performance of a connection between devices, for example, if the connection exists or is reliable. Time taken for ICMP packets traveling between devices is measured by ping, such as in the screenshot below. This measuring is done using ICMP echo packet and then ICMP's echo reply from the target device. Pings can be performed against devices on a network, such as your home network or resources like websites. This tool can be easily used and comes installed on operating systems such as Linux and Windows. The syntax to do a simple ping is ping IP address or website URL. Let's see this in action in the screenshot below. So, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ CMD. So let's ping facebook.com. तो आप देख सकते हो जैसे कि जो मेरा डिवाइस है उसके थ्रू ये 4 जो है ICMP echo पैकेट गए हैं, जिन्होंने इतना टाइम लिया है जो कि है 56, 53, 52 एंड 58। सो इससे हमें पता लगता है कि जो फेसबुक है वो अप है। लेकिन अगर हम मान लो पिंग कोई भी एक ऐसा
जुबरिश यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब। तो देखना कुछ भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आप किसी ऐसे आईपी एड्रेस के ऊपर पिंग रिक्वेस्ट भेजते हो जो कि एग्जिस्ट करता है, तभी आपको ये रिस्पॉन्स जो है वापस मिलता है। सो लेट्स गेट बैक। Here we are pinging a device that has the private IP address of 192.168.1.254, जो कि इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। Ping informs us that we have sent 6 ICMP packets, all of which we received with a average of 4.16 milliseconds. तो अगर आप इस टाइम जो यहाँ पे 6 पैकेट्स है उनकी जो टाइमिंग है उनकी आप एवरेज निकालें तो वो 4.16 मिली सेकेंड्स आएगी। नाउ यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग टू पिंग द एड्रेस ऑफ 8.8.8.8 on the deployable website in this task. Pinging the correct address will reveal a flag to answer the following questions below. So अभी अभी अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास ये जो पिंग है इसका क्या यूज़ है, तो आगे अभी हम जैसे कि आगे आने वाले टाइम में हम नए जो रूम्स हैं उनको सॉल्व जब करेंगे, तो हमें बहुत बार इस अ, जो पिंग कमांड है उसका यूज़ करके चेक करना होता है कि वो होस्ट अप भी है या डाउन ही है। क्योंकि जब हम nmap स्कैन जो कि नेटवर्क मैपिंग होती है, जब हम उसको परफॉर्म करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वो होस्ट अप है या नहीं है, क्योंकि अगर वो अप नहीं होगा तो हम उस नेटवर्क को मैप नहीं कर पाएंगे। मतलब कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है या सर्विसेज हम एनुमरेशन करेंगे, वो चीज़ हम नहीं बता पाएंगे अगर वो होस्ट अप ना हो। तो पिंग जो कमांड है उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि वो होस्ट अप है या फिर नहीं है। तो इस टास्क के अंदर हमें इस क्वाड 8 जो है इसको पिंग करना है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या इसके क्वेश्चंस हैं। व्हाट प्रोटोकॉल डज पिंग यूज? सो ये हमने देखा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि आईसीएमपी, ये जो प्रोटोकॉल है पिंग यूज करता है। व्हाट इज द सिंटेक्स टू पिंग 10.10.10.10? दैट इज सिंपल, पिंग स्पेस दिस आईपी एड्रेस। व्हाट फ्लैग डू यू गेट व्हेन यू पिंग क्वाड 8? सो कॉपी कर लेते हैं, व्यू साइट करते हैं। यहाँ पे हमें ये जो पिंग है ये परफॉर्म करना है, तो हमें यहाँ पर डालना है ये। आप देख सकते हो पिंग डैश सी एंड 4, ये हमें पता करना होगा कि क्या है। मेरे ख्याल से अगर आप किसी ये जो है ये गूगल डीएनएस सर्वर है, अगर आप डीएनएस सर्वर को पिंग करना चाहते हैं तो मे बी टैग सी एंड फिर ये 4 पैकेट्स हैं। तो इस चीज़ को अभी हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो आप देख सकते हो दिस इज आवर फ्लैग and we have successfully pinned quad 8. So let's see this taxi and 4 का क्या मीनिंग है थ्रू चैट जीपीटी। देख पा रहे हो जो डैश सी 4 है इसका मतलब है सेंड एग्जैक्टली 4 पैकेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 4 ही पैकेट्स जो है वो सेंड करेगा। इसी के साथ ये जो हमारा रूम है वो कंप्लीट होता हुआ। कंटिन्यू योर लर्निंग बाय ज्वाइनिंग इंट्रो टू लैन रूम। So congratulations, you have successfully completed
द इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। जो इसका नेक्स्ट जो रूम है वो है हमारा इंट्रो टू लैन, जो कि एक पेड रूम है। सो नेक्स्ट टाइम मैं इससे पे करूँगा और कंटिन्यू करेंगे हम अपने रोड मैप के ऊपर। सो तब तक के लिए, इफ़ you like this video, do like and subscribe, and I will meet you on the next video. So bye bye.